Hello students, so welcome back to your second year, and today I am going to discuss with you the syllabus of English literature for BA part 2nd. Let us have a close look. Paper first is poetry and drama, and the passing marks are 36. And now we'll discuss the paper pattern. Question number 1, as you know, you have already given the exam, but let me again remind you that question number 1 will be reference to context from unit A, B and C. Candidate will be required to explain 4 passages of reference out of 8, and every passage will be of 5 marks, as so the total for question number 1 will be 20 marks. Now we come to question number 2. Question number 2 will also be compulsory. You have to attempt this question. The student will be required to attempt 5 questions out of 10 to be answered in about 5 lines each. तो 5 lines में आप आंसर देंगे और 10 में से कोई 5 करके आएंगे. Each question will carry 4 marks, which makes the total of 20 marks. Now we come to question number 3, which is an essay type question, and every question there you have to attempt 3 questions, and each question is of 20 marks, one from each section with internal choice. What do you mean by internal choice? That from section A you have to attempt, there might be 2 choices, there might be 3 choices, and from those choices you have to select one question. Okay, now we'll discuss the syllabus according to the sections. Section A is British poetry, which is written by the writers of England. Okay, so the first writer is Thomas Gray. So last year when in BA first year you were having Elizabethan era in your poetry, Elizabethan and Puritan era in your poetry, and now you have the Romantic era which began with French Revolution. Okay, so the pre-Romantic we have here is Thomas Gray, और उनकी एलेजी है, एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड. देन वी हैव द पोएट विलियम ब्लेक, जिनकी 2 पोएम्स हैं, लंदन और टाइगर. उसके बाद मेन जो प्री रोमांटिक राइटर्स हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, शेले, बायरन, कीट्स, इन सब की पोइट्रीज है. तो वर्ड्सवर्थ की द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस एंड द सॉलिटरी रीपर. उसके बाद एस.टी. कोलरिज की द एंशियंट मैरिनर, विच इज़ ए बैलेड. देन नेक्स्ट यू हैव जॉर्ज जॉर्डन बायरन की पोइट्री है, देयर इज़ ए प्लेजर इन द पाथलेस वुड्स. तो वो सी के बारे में, ही लव्ड सी, एंड उन्होंने सी के ऊपर ये पोएम लिखी है. देन नेक्स्ट इज़ द रेवोल्यूशनरी पोएट पी.बी. शेले, और उनकी ओड है टू द वेस्ट विंड. नेक्स्ट वी हैव इन लाइन इज जॉन कीट्स, द पोएट ऑफ सेंसिबिलिटी, और उनकी बहुत ही ब्यूटिफुल पोएम है ओड टू ऑटम. Now we'll discuss the next slide. Okay, now take a look. This is section B. Section B में you have Indian writers. Indian writers में सबसे पहले है निसिम इज़ेकिएल, और इनकी 2 poems हैं, Enterprise and Night of the Scorpion. Next in line is Kamala Das, My Grandmother's House and The Looking Glass. Then you have a very famous poet from South. His name is Arun Kolatkar, और इनकी 3 poem हैं, An Old Woman, The Bus and Chaitanya. Next in line is A.K. Ramanujan. उनकी भी 3 poems हैं, Of Mothers Among Other Things, Obituary and A River. And last is जो कि नए added हुए हैं, जीव पटेल, and his 2 poems are On Killing a Tree and Servants. And for these, as you know, you have to buy Jasbir Jain का जो book है, the poetry का book, okay, or you have to buy the 20th century poets edited by Parthasarathi for Indian writers. Indian writers के लिए अलग लेंगे आप, और British writers के लिए अलग जो है The String of Gold जो आपकी बुक है edited by Dr. Jasbir Jain, वो आपको खरीदनी रहेगी. उसके बाद में सेक्शन सी जो है, यू हैव इब्सन का जो प्ले है अ डॉल्स हाउस, और टैगोर का है द पोस्ट ऑफिस.
ओके, तो इसमें से जो भी टेक्स्ट आप करना चाहें दोनों भी कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं। आई विल टीच यू बोथ, आप अपना पसंद से कर लीजिएगा और फिर एक इतना अच्छे से करना है कि उसमें से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आप अटेम्प्ट कर सकें, क्योंकि एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आएंगे इस सेक्शन में से। ओके, सो यू हैव टू बाय हेनरिक इब्सन की अ डॉल्स हाउस और टैगोर का द पोस्ट ऑफिस इस सेक्शन के लिए। नाउ नेक्स्ट विल टॉक अबाउट पेपर 2 प्रोज एंड फिक्शन। अगेन वही आपका द सिमिलर पैटर्न इज देयर दैट देयर विल बी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, 8 पैसेजेस आएंगे जिसमें से 4 करने हैं और 20 मार्क्स का रहेगा। अगेन क्वेश्चन नंबर 2 विल ऑल्सो बी कंपल्सरी, 10 क्वेश्चंस में से 5 करना है और हर क्वेश्चन का मार्क 4 रहेगा, टोटल विल बी 20। देन द लास्ट इज देन यू हैव टू अटेम्प्ट 3 क्वेश्चंस ऑफ essay टाइप of about 20 marks with internal choice. Okay, now we'll come to the next slide. Okay, so in paper second prose and fiction में पेपर सेकंड में सबसे पहले आपके एसेइस्ट हैं, तो पहले एसेइस्ट हैं एस राधा कृष्णन और उनका जो है ऐसे है द गांधीयन आउटलुक। तो राधा कृष्णन का ही आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है डेमोक्रेसी, और अब सेकेंड ईयर में कौन सा है द गांधीयन आउटलुक। आर के नारायण का है अ बुकिश टॉपिक, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जे.बी. प्रिस्ले का है मेकिंग राइटिंग सिंपल, एंड वर्जीनिया वुल्फ का है हाउ शुड वन रीड अ बुक। उसके बाद में स्टोरीज़ हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, और बहुत ही फेमस जो रशियन राइटर शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं वो है लियो टॉल्स्टॉय, उनकी है 3 क्वेश्चंस। देन यू हैव पर्ल एस बक, और उनकी जो पोएम है इट्स बेस्ड ऑन वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द वॉर द रिफ्यूजीज। और उसके बाद में आर के नारायण का है अंडर द बैनियन ट्री, इसमें नाम भी करके कैरेक्टर है और जो कहानियाँ सुनाता है। एंड देन नेक्स्ट इन लाइन यू हैव एलिस वॉकर एम आई ब्लू, जिन्होंने कल रंग भेद की नीति के ऊपर हॉर्सेस को एज अ सब्जेक्ट बनाकर ये स्टोरी लिखी है। फॉर दिस यू हैव टू बाय एन एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश एसेज एडिटेड बाय R.P. सिंह एंड द पॉइंटेड विजन एडिटेड बाय उषा बंदे एंड कृष्णा गोपाल। देन इन सेक्शन बी 2 राइटर्स हैं, नॉवलिस्ट हैं। पहले तो इंडियन राइटर हैं चमन नाहल, जिन्होंने आज़ादी करके नावल लिखा है 1947 के पार्टीशन के ऊपर, और दूसरे हैं विलियम गोल्डिंग लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, उन्होंने नावल लिखा है ऑन द बेसिक ह्यूमन नेचर कि अगर ह्यूमन वापस प्रिमिटिव एज में चले जाएं तो व्हाट बेसिक इंस्टिंक्ट दे हैव। ओके, तो ये दोनों बुक्स आपको खरीदनी रहेंगी। देन सेक्शन सी में 3 टॉपिक्स हैं, नोट मेकिंग, समराइजिंग एंड थीम राइटिंग। इसके लिए कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आई विल प्रोवाइड यू विद द कंप्लीट मटेरियल। ओके, तो नोट्स कैसे बनाए जाते हैं वो आप बनाते आ रहे हैं, पर और थोड़ा पॉलिश्ड वे में आप इसको सीखेंगे। किसी भी चीज़ की समरी कैसे की जाती है कि अगर 10 पेज का है तो उसका कितना % आप लोगे, उसको आप कैसे समराइज़ करोगे। ओके, देन थीम राइटिंग कि अगर आपको कोई थीम दे दी जाती है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको कैसे लिखेंगे, वेरी सिमिलर टू आर्टिकल राइटिंग। ओके, थैंक यू सो मच and very best of luck for this year, and hope you enjoy learning through videos. If you have any problem, we'll be contacting you.